Hello, good morning to everyone. Now, just today, we are starting with a new subject that is economics, and with the module first, that is theories of international trade. It is really very much easy topic. Now, just as what I am discussing with you, just an introduction that what actually the international trade is, its features, what is internal trade, what is international, and difference between internal and international, merits, demerits and all. So today just we'll discuss the basic and the easy things, but they are also very much important for the exam point of view also, right? Okay, so now just I will start what actually the international trade is. सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी, ट्रेड क्या होता है। ट्रेड आप सबको पता है कि जो हम एक चीज़ दूसरी चीज़ एक्सचेंज करते हैं दूसरों के साथ, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इन ट्रेड। व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग द थिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, right? And suppose it can be an exchange not only of the goods but also the services you are exchanging, that is also what called in trade. So here international trade means what? When you are not doing the trade internally but with the outside the country, this is what called an international trade. So here international trade actually refers to the exchange of goods and services between two or more than two countries. See here, it's given here, international trade refers to the exchange of goods and services between the two or more than the two countries. Now here we will see what actually the meaning of international trade is. International trade is a trade and an economic love and affair, that is, international trade is a trade among the residents of the different countries. Ordinarily, sale and purchase of goods is also called a trade. As I told you, trade इसको बोला जाता है when the two person are exchanging the goods or the services, that is a sale and purchase. The other one will sell and the other one will purchase. The one will sell and the other one will purchase. That is what called an trade, right? Now we will just see what actually the inter-regional, internal or domestic trade is. इंटर रीजनल क्या होता है कि जो विद इन द रीजन में एक्सचेंज होता है या सेल एंड परचेज होता है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एन इंटर रीजनल। इंटरनल और डोमेस्टिक भी ये रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एप्पल है वो हिमाचल प्रदेश के अच्छा होता है, ठीक है, तो गुजरात जो हिमाचल प्रदेश से एप्पल मंगवाती है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड इन डोमेस्टिक ट्रेड। Very easy. So clear the concept with inter-regional, internal or domestic, and the international trade. Here a few definitions are given. The first one is about according to the Frederick list, domestic trade is among us, while international trade is between us and them. Very nice. Okay. Then Penguin dictionary, according to them, the exchange of goods and services between the one country and the another is called an international trade. Very nice sweet definition is given by the Penguin's dictionary. Now we will just see the basic features of international trade. What are actually the features of it? The first one is territorial specialization. What is territorial specialization? Here territorial specialization is basically due to this geographical specialization. geographical specialization क्या होता है कि according to the, जैसे आप देखो कि आपके climatic conditions के हिसाब से या आपकी geography के हिसाब से आपके country की कोई services या production of goods अच्छा होता है, आपके पास उसका advantage है, तो आप दूसरी country के साथ क्या करते हो, exchange करते हो, उसकी वो specialization है। तो this is what called and due to the geographical specialization. Suppose यहाँ पे for example अच्छा example दिया हुआ है that India has a specific advantage in the production of tea and jute. टी और जूट इंडिया का अच्छा है और यूके का क्या अच्छा है, स्टील। तो हम क्या करेंगे, इंडिया में से मतलब वी टी एंड जूट वी विल जस्ट गिव इट टू द यूके एंड फ्रॉम यूके वी विल जस्ट टेक द स्टील. सो दिस इज ऑल दी अबाउट टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन. सेकेंड वन इज इंटरनेशनल कंपटीशन. इंटरनेशनल कंपटीशन क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम कोई ऑल कंट्री से लेते हैं, दूसरी कंट्री से लेते हैं, ठीक है, या दूसरी कंट्री को हम सेल करते हैं, तो उसके बीच में भी कंपटीशन होता है. जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे स्टील नहीं है, स्टील है, लेकिन वहाँ पे हमारा उनका स्पेशलाइजेशन है तो हमको कॉस्ट बेनिफिट मिलता है, ठीक है. तो उनका इसमें क्या रहता है, कंपटीशन होता है.
यहाँ पे कंपटीशन में क्या क्या आ सकता है, क्वालिटी आ सकती है कि सपोज़ यूके की क्वालिटी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, तो एक क्वालिटी आ सकती है, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, प्राइस, एडवर्टाइजमेंट, देन पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ें कंपटीशन में आती है। किस में आती हैं? कंपटीशन। सो दिस इज़ हाउ दे डिसाइडिंग द विच एक्चुअली प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल एंड कंसिडर्ड एज विनर इन द मार्केट. Now we will just see what actually the separation of sellers and buyers. अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ट्रेड कर रही हूँ बाहर वालों के साथ, मींस इंटरनेशनल, तो मुझे पता नहीं होगा कि सामने वाला बायर कौन है. सेलर मैं हूँ लेकिन बायर कौन है वो मुझे नहीं पता होगा. तो उसके लिए हमारे पास, हम किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? मिडल मैन फॉर दी ट्रांजेक्शन. हम किस पे डिपेंड रहते हैं? मिडल मैन पे. सो दिस इज हाउ देयर इज एन सेपरेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ओके. Yes. Fourth one, long chain of middlemen. Here international trade is very long and complex. आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है तो वो कोई इजीली नहीं हो जाता है, वो एक बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है एंड इट्स वेरी मच लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड एज वेल एज इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर द बायर्स एंड द सेलर्स टू परफॉर्म ऑल द फॉर्मेलिटीज़ देमसेल्व्स. ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इतनी मगजमारी ना करनी पड़े तो उसके हिसाब से हम क्या रखते हैं, एक्सपर्ट होता है जो मिडल मैन एक्सपर्ट होता है हम उसको रख देते हैं, ताकि जो भी काम प्रोसीजर वगैरह रहता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल चलो आप लाइसेंस आप करवाते हो, ठीक है, तो लाइसेंस में आपको पता है कि कितनी बड़ी प्रोसीजर होती है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, कितने धक्के खाने पड़ते हैं. तो उसकी बेटर ऑप्शन क्या रहता है, हम क्या करते हैं, एजेंट को बोल देते हैं, एजेंट हमारा प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर देता है, हम उसको पैसे दे देते, काम ख़त्म हो जाता है. सेम वे एज इन द रेलवेज़. अब तो ऑनलाइन हो चुका है इसलिए कोई टेंशन नहीं आती, बट स्टिल अगर वेटिंग वगैरह में होता है और कुछ करना पड़ता है तो व्हाट वी डू, हम रेलवेज़ के एजेंट होते हैं, हम उनको बोल देते हैं, हमारी टिकट बुक हो जाती है. सो दिस इज़ ऑफ हियर ऑल्सो मिडल मैन प्लेज अ मेन रोल, राइट, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बिटवीन द बायर एंड द सेलर एट द फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ वी विल सी mutually, fifth one is mutually acceptable currency. Here the currencies are also of importing and exporting countries. दोनों का क्या रहता है, अलग रहता है. So here it is necessary also to find out that acceptable दोनों को करेंसी कौन सी होगी. जनरली डॉलर और पाउंड ही सिलेक्ट होता है, बट फिर भी करेंसीज दोनों को एक्सेप्टेबल म्यूचुअली होना चाहिए बिफोर डूइंग द इंटरनेशनल ट्रेड इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सिक्स्थ वन इज़ इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस. हर एक कंट्री के रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, ट्रेड के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है. दे रिक्वायर अ नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रेड. अगर आज मुझे कोई बोलेगा या आपको कोई बोलेगा कि आप ट्रेड करो तो इजी है ऐसे ही ट्रेड करना, पहले आपको रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ ट्रेड का क्या है वो सब पता होना ज़रूरी है, तो ही आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी टू नो बिफोर डूइंग द ट्रेड. यस, सेवेंथ वन, इट्स अ गवर्नमेंट कंट्रोल. ऑब्वियसली यहाँ का इंडिया का गवर्नमेंट अलग है, चाइना का अलग है, तो सबके क्या होते हैं, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके पूरे कंट्रोल होते हैं. जैसे आपको पता है अभी क्या हो गया है, पहले गोल्ड लेके आते थे दुबई से वेरी इजीली, दे ऑल विल ब्रिंग, बट नाउ द टैक्सेस इज बीइंग चार्ज वेरी हाई. तो हम सोचते हैं कि इतना टैक्स उधर दें, इससे बेटर है हम यहाँ से ही ले लें. तो गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट ने इसीलिए ही रखा है ताकि हम बाहर वालों से ना लेके आएँ और हम यहीं वाले लोगों से लें और हमारे ही इंडिया को हम ज़्यादा बेनिफिट दें. सो दिस इज़ हाउ अबाउट द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द imports and export for the national interest. Eighth one, several documents. Here a large number of documents are required in the international trade. Now these all are the features as we just saw over here about the international trade. Now we will just see what actually the factors are which influence the international specialization or the determinants of the international trade. Yes, the first one is natural endowment. What is natural endowment? Natural endowment is what, कि आपकी कंट्री में जो मेन स्पेशलाइजेशन होता है उससे हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं. जैसे आपको पता है ऑयल वेल्स है तो वो गल्फ कंट्री के पास ऑयल वेल्स बहुत अच्छी है. इंडिया है तो इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास मीका वो ज़्यादा अच्छा है. रशिया के पास मैंगनीज़ अच्छा है.
फिश प्रोडक्शन बांग्लादेश के पास और जापान के पास अच्छा है। टेक्निकल अगर आप देखने जाओ तो भी टेक्नोलॉजीज़ में भी जापान आगे है हमारे से। तो हम क्या करते हैं, जो स्पेशलाइजेशन होता है उससे उसको हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ताकि हमको लो कॉस्ट में पड़े। और नेचुरल इन्वायरमेंट, मेनली नेचुरल इन्वायरमेंट क्या रहता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है, एज कंसिडरिंग विद द फर्टिलिटी सॉइल एंड ऑल, जो सही रहता है, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड अ नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे बेसिकली जैसे इंडिया एंड श्रीलंका है तो उनके पास क्या स्पेशलाइजेशन है, ऑफ टी। तो वो लोग क्या करते हैं, दे आर ऑन दी क्लाइमेटिक कंडीशंस बेसिस दैट उनके पास अच्छा है। हमारे यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है तभी प्रोडक्शन ऑफ टी अच्छा है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचुरल इन्वायरमेंट। नाउ वी विल सी टेक्निकल नो हाउ। अब टेक्निकल नो हाउ में मैंने आपको पहले बताया कि जापान इज़ जस्ट बेसिकली नॉट ओनली ऑन द कोस्ट, एक्चुअली इट इज़ ऑन द कोस्टल कंट्री, बट नॉट ओनली इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड ऑल, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन द टेक्निकल वाई। आपको पता है तो आप काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी वाइज कि जो हम उधर से लेते हैं, जापान से। जैसे यूएसए है तो यूएसए के पास क्या है, डिफेंस की सारी चीज़ें अच्छी है, जैसे F-16 फाइटर्स हैं, पैट्रियट मिसाइल्स है, तो हम उसके बेसिस वहाँ से मंगवाते हैं। सो दिस इज़ हाउ उसका स्पेशलाइजेशन है, उसका मेन फैक्टर है ये इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। ओके, कॉस्ट डिफरेंस, एज आई टोल्ड यू कि कॉस्ट डिफरेंस ऑल्सो प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। सो यहाँ पे सोल फॉर अ पैरामीटर सिर्फ एक कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होता इंटरनेशनल मार्केट का, उसका सेल्समैनशिप कैसा है, उसका प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कैसा है, एडवर्टाइजमेंट कैसी है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर दी कंज्यूमरिज्म। Now we will see new economic order. What actually the new economic order is? Here the world market is through actually the multinational corporations. So their emergence of the new economic order has forced various nations to integrate their economies with the rest of the world, leading to greater specialization of the international trade. हम क्या करेंगे, अगर जिसका स्पेशलाइजेशन है वहाँ से हम लेंगे तो हमारे से भी कोई लेगा। आज तुम्हारे पास प्रोडक्शन है, मेरे पास भी है प्रोडक्शन उस चीज़ का, इंडिया में भी है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ हम जहाँ से स्पेशलाइज्ड होती है वहाँ से हम लेते हैं ना, तो क्या रहता है, बेनिफिट रहता है दोनों कंट्री को, ताकि ट्रेड भी हो सके, रिलेशंस अच्छे रहते हैं, साथ में हमको कॉस्ट बेनिफिट मिलता है और क्वालिटी अच्छी मिलती है, राइट। सो दिस इज़ हाउ इकोनॉमिक वाइज भी अगर आप देखने जाओ तो आपको सही रहता है। दिस इज़ अबाउट न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। आगे थियरीज आएगी, वो मैं आपको एक एक थियरी आगे पढ़ाऊँगी कि व्हाट एक्चुअली द थियरीज आर अबाउट द इकोनॉमिक ऑर्डर है, स्पेशलाइजेशन है, वो एडम की आएगी, रिकार्डो की आएगी, तो वो मैं आपको समझाती जाऊँगी एक के बाद एक थियरी, ठीक है। यस, नाउ वी आर जस्ट ऑन द फैक्टर्स, सो वी विल जस्ट सी ओवर हियर। फिफ्थ वन इज़ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या, मैंने आपको पहले अपने फीचर्स में भी देखा कि करेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एक्चुअली एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन द टर्म्स ऑफ अनदर। सो हियर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर currency. So if there is a high demand for a country's currency and its price will tend to rise. Why? Because the currency fluctuations in the price can often become cheaper to buy the goods. So this is how exchange rate also plays a major impact on the factors influencing international specialization. Now we will see what actually the competitiveness is. Here competitiveness actually plays a major role in the relative ability for the different countries for providing a different products or the services. Here competitiveness is taking into account the cost of employment, level of government, regulation and ease of doing the business. So here in the international trade, as it's more competitive countries will tend to higher the level of the global trade. Seventh one, tariff and tariff barriers. Tariff is what? One type of a tax you can say. Tariff is a tax, right? So here government trade barriers to limit the trade within the foreign countries. Limitation लाने के लिए वो barriers लगा देते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया
कि दुबई से अभी गोल्ड लेके आना है या आप कोई भी मोबाइल या ऐसे कुछ चीज़ें लेके आते तो उसके टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। तो उससे बेटर है कि हम क्या सोचते हैं, हम इंडिया से ही ले लें। सो दिस इज़ हाउ टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। Globalization. Globalization is the term used to describe the general tendency for the national economies to become more integrated with each other. So here technologies, increased capital flows, reduction of trade barriers by the national government. So here globalization is a general trend that actually caused or it can be increased in the international trade over the last 3 or 4 decades. Now प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स में क्या है, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड इज एक्चुअली अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है, रिच कंट्रीज़ लाइक यूएस often imports the goods from the countries that can produce the goods inexpensively due to low labor cost. But the standards used here to create the goods can vary from one country to another. So here there is a strict impose on the quality control by the US on the environmental standards and the manufacturing of certain type of products while with the another country, right? So here this is all about production standards. Subsidies. Here subsidy is also being government assistance being given to the certain companies or industries to reduce the price of the domestic goods. जैसे एग्रीकल्चर्स में ही है, फार्मर्स को क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है, राइट। हमको भी उस हिसाब से फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट हुआ है बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर दी कंट्री, फॉर आर कंट्री, राइट। सो दिस इज़ हाउ सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है सर्टन कंपनीज़ को भी, ताकि वो डोमेस्टिक में जो प्राइस सेट करे वो थोड़ा बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाए। And here subsidies have and similar to the tariff, so they tend to make a people buy domestic goods in a greater number. हम domestic goods ज़्यादा purchase करें rather than purchasing from the outside, international or any other country. So this is how subsidies is given. Production cost. Here मैं आपको बता ही रही थी कि एंडाउनमेंट थियरी और रिकार्डो का एम्फोसिस क्या रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट में आपको दिया हुआ है फैक्टर एंडाउनमेंट थियरी विच टेंड्स एट द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन अ कंट्री इज़ केपेबल टू प्रोड्यूस सर्टन कमोडिटीज़ वेरी चीपली। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया प्रोडक्शन कर ही रही है, लेकिन दूसरी कंट्री है वो उसका चीप प्रोडक्शन कर रही है, तो वो कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए कंट्री डिसाइड करती है कि जो स्पेशलाइज्ड करता है वो उससे लेगा और इंडिया का जो स्पेशलाइजेशन है वो उस कंट्री को देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ देयर इज ऑल अबाउट फैक्टर एंडाउनमेंट थियरी। अब कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी, कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी किसने दी है, रिकार्डो ने दी है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक्स कंट्री है वो ए कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, एट अ चीपर रेट, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एक्स कंट्री वो प्रोड्यूस कर रही है ए कमोडिटी, कैसे, चीपर रेट पे, और दूसरी है वाई कंट्री। वाई कंट्री कैन प्रोड्यूस अ बी एट अ चीपर रेट, ठीक है, और बी प्रोडक्शन, बी वाला प्रोडक्ट है वो वाई कर रही है, बी ले लो चलो ब्रश, और ए ले लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक सोप का नाम है, चलो सोप, ठीक है ना। एक्स कंट्री है वो सोप का प्रोडक्शन अच्छा कर रही है चीपर रेट पे, और वाई है वो ब्रश का प्रोडक्शन कर रही है चीप रेट पे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ बोथ एक्स एंड वाई कंट्री शुड स्पेशलाइज। अभी वो क्या करते हैं, वो दोनों साथ में आते हैं, वो बताते हैं कि हमारा स्पेशलाइजेशन ब्रश में है और वो बताते हैं हमारा सोप में है। तो इसी हिसाब से वाई कंट्री है वो ब्रश बेचती है एक्स को और एक्स कंट्री बेचती है सोप वाई को। सो दिस इज़ हाउ वाई शुड एक्सपोर्ट बी एंड वाई शुड एक्सपोर्ट ब्रशेज एंड इम्पोर्ट सोप। सो दिस इज़ हाउ ऑल अबाउट द प्रोडक्शन कॉस्ट थियरी। डिटेल में आएगी, मैं आगे आपको अच्छे से एक और बार क्लियर करवा दूँगी। Now we will just see rare and cheap commodity. Rare and cheap commodity is what here the production of certain rare commodities is possible only in certain countries, right? So here country possess a geographical and the other advantages. So here the rare commodity is not actually being produced by the countries. Here in this case the trade is possible. So some cases the cost of differences is not important, that is why trade is possible.
So this is all about rare and cheap commodity. Now we will see factor mobility. Factor mobility. Mobility means what? Migration, we can say, moving from one place to another. So here country can possess more mobility in the terms of labor and capital. So here the immigration of laws, citizenship, qualifications, language, atmospheric, political atmosphere, all these are in the mobility that will increase the reverse in case it will fall. Okay, now we will see international value. Here most of the countries do not have trade surplus in their account, but trade balance is not balanced. So here trade deficit can be financed through the capital flows. You know that deficit यानी what? अगर हमारी इनकम में उससे ज़्यादा हम एक्सपेंस करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट. तो ट्रेड के हाल में भी यही हो रहा है. हम बेचते नहीं हैं जितना हम मंगवाते हैं बाहर से. हमारे पास ज़्यादा आ रहा है बाहर की कंट्री से. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एन ट्रेड डेफिसिट. तो वो आगे मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसमें क्लियर करूँगी. बेसिकली हमको आता तो है ही, हमने प्रीवियस में क्लियर किया हुआ है, बट स्टिल मैं आपको एक बार क्लियर करवाऊँगी. The items included in the balance of trade influence the trade balance. Now 15th, the last one is international policy and the role of state. यहाँ पे द पॉलिसी ऑफ ईच कंट्री इज़ ऑब्वियसली डिफरेंट. मैंने आपको बताया कि हर एक गवर्नमेंट अपनी खुद की कंट्री की पॉलिसी अलग बनाती है, सेम नहीं होती है, राइट. सो हियर द पॉलिसी ऑफ डिफेंस, टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटी, सब्सिडीज, ट्रेड कंट्रोल्स एक्सेट्रा आर लाइकली टू बी डिफरेंट. So this would affect the international and national market. So here during the last few years the globalization and liberalization policies are adopted by the गवर्नमेंट. यहाँ पे देखो आपका जो मेन पर्पस है कि ट्रेड को रिडक्शन करना है, रिस्ट्रिक्शन देना है, तो पॉसिबल है कि गेट पॉलिसी है या WTO है, दैट प्लेज अ वाइटल रोल. गेट और WTO हमने ऑलरेडी आगे डिटेल में किया है कि गेट क्या है. Actually it is a general agreement on the tariff and trade, and WTO, that is a World Trade Organization, which actually plays a vital role over here. Now we will see the basis of international trade. Now international basis, international specialization ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर, अगर कोई भी चीज़ जैसे कंट्री है तो उसके पास अवेलेबल नहीं है, ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द वन कंट्री, इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी, राइट. सो हियर दिस इज हाउ वी कैन जस्ट डू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वी कैन इम्पोर्ट द गुड्स एंड और वी कैन imports any other the goods, which actually the specialization is. Difference in cost, absolute cost difference, which is actually being given by the Adam Smith, that is the country can produce a commodity which is actually an absolutely cheaper cost than the other country, according to the eminent economist Adam Smith. The main basis of international trade is the difference in absolute cost. We will go in detail. The theory of Adam Smith is there. कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, यहाँ पे क्या करते हैं, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस में सिर्फ कॉस्ट को ही मतलब इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, दैट इज़ एक्चुअली गिवन बाय एडम स्मिथ. और कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस में क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन दोनों कंट्री कर रही है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि कौन सी कंट्री अगर हम कॉस्ट में कंपेयर करने जाएं तो सही पड़ती है, उससे हम ट्रेड करते हैं. तो वो थियरी दी गई है रिकार्डो ने. Product differentiation, as I told you that here the import and the different varieties of clothes, या कोई भी ऐसा रहता है जैसे जापान है तो टेक्निकल नो हाउ उसका काफ़ी अच्छा है, तो हम टेक्नोलॉजीज एक्सचेंज करते हैं. सो इट इज़ डन टू एनेबल हियर टू पीपल टू कंज्यूम द लार्ज वेराइटीज़ ऑफ गुड्स, ताकि हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ सकें. वैसे जनरली हम इंडिया है तो इंडिया के पास अगर एक ही जैसे कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम दूसरे प्रोडक्शन का कुछ यूज़ करने का मौका नहीं मिलता है. तो अगर हम ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल के साथ तो हमारे पास वो प्रोडक्ट्स आ सकते हैं और हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. Now internal and international trade, as you all aware about it कि internal means what, कि if you are doing in trade within the boundaries of the countries, that is what called an internal trade. And international trade means what, when you are doing and trading with the outside the countries, that is what called an international trade. So here similarities are there. Specialization,
वेरी नाइस। मैंने आपको बताया कि स्पेशलाइजेशन में क्या रहता है कि सपोज हमारे यहाँ पे गुजरात में मैंगो अच्छे होते हैं तो वी कैन जस्ट गिव मैंगो टू एनी अदर स्टेट, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में एप्पल अच्छा होता है तो वो गुजरात में आता है, तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एन इंटरनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या रहता है कि सपोज यहाँ का प्रोडक्शन मैंने आपको बताया जूट का है, टी का है, वो अच्छा है तो हम यूके वालों को भेजेंगे, और यूके वाले हमको क्या भेजेंगे, स्टील, क्योंकि उनका स्टील में प्रोडक्शन अच्छा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेशलाइजेशन। नाउ वी विल सी कॉस्ट। कॉस्ट में भी benefit of cost of production is seen right here. Rice and fish is actually a comparatively less in Andhra Pradesh. Thus Andhra Pradesh should produce rice and fish and sell to other parts of the country. So this is all about cost, ठीक है। एक्सचेंज में मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो सही रहता है, ऐसा नहीं कि मुझे एक्चुअली राइस की ज़रूरत ही नहीं है लेकिन वो राइस दे रहे हैं तो वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। So this is all about exchange. Profit is actually the main motive over here, whether it is an internal or international trade. The main motive over here is to earn profit. Mutual cooperation should be there between the buyer and the seller. Then only we can just do the trade. Voluntary transactions should be as kind that depends on the discretion of the people. Here the government of country may restrict or even prohibit trade with another country, but it cannot force the people into buying and selling of particular good. जैसे वाइन है, ठीक है, गुजरात में इट्स एन प्रोहिबिशन, राइट। सो यू कैन जस्ट फोर्स देम। अगर आपको कोई मना कर रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आपको भेजूंगा नहीं वाइन क्योंकि तुम्हारे गुजरात में बंद है, दैट इज़ प्रोहिबिशन है, restriction है, so you can't force them, right? So here voluntary transactions are there. Consumers sovereignty, here the international trade or the international trade producers produce goods which are actually liked by the consumers. So here taking into account the points of similarities, we can say that there is no basic difference between the international and international trade. So these all are the similarities. Now difference between of internal and international trade. Here difference between about that immobility of the factors of production. Factors of production आपको पता है, there are 4 factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur, right? So here classical economists are of the view that the factors of production like labor and capital are mobile within the national boundaries of the country, so they can move conveniently from one place to another, right? So here from the one industry to the other industry also it's very much easily. So these are the reason why their own country has to change the mobility of the factors of production. So here there is a basic difference between the internal and the international trade. एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे लेबर्स का वर्क ज़्यादा है तो हमारे पास यहाँ पे शर्ट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जापान है तो वहाँ पे मशीनरीज अच्छी है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई क्रोनो वर्किंग वॉचेस वगैरह आती है तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ हाउ इट डिपेंड्स कि आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सा अच्छा है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। नाउ वी विल सी डिफरेंट प्रोडक्शन कंडीशंस। हियर प्रोडक्शन कंडीशन ऑफ एवरी कंट्री इज़ एक्चुअली डिफरेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ का हमारे यहाँ का लेबर वर्क अच्छा है तो जापान के लोगों का क्या है, मशीनरीज अच्छा है, और यहाँ पे पूरा डिफरेंट है। यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम अलग होगा, वहाँ का टैक्सेशन सिस्टम अलग होगा, यहाँ के लेबर लॉज, हमारे यहाँ लेबर है तो लेबर लॉज जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, और बाहर की कंट्री के लेबर लॉज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो दिस इज़ हाउ देयर इज़ एन डिफरेंट प्रोडक्शन कंडीशंस। वहाँ के प्रोडक्शन की करने की कंडीशंस अलग होती है और यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कंडीशंस डिफरेंट होती है। डिफरेंट करेंसीज आर ऑल्सो डिफरेंट एज यू ऑल नो, कि मैंने आपको पहले आगे बताया कि यहाँ पे म्यूचुअली करेंसी का एक्सेप्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, रुपी एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ हम किसी और के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर, ठीक है। सो इट डिपेंड्स। सो डिफरेंट करेंसीज आर देयर फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ डिफरेंट मार्केट कंडीशंस इज ऑल्सो डिफरेंट। अभी का ही अगर आप पीरियड देख लो, ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, काफ़ी रिसेशन चल रहा है। तो दिस इज हाउ इट डिपेंड्स ऑन दी परचेज एंड द सेल फॉर दी एंड इन दैट बायर्स एंड सेलर्स आर ऑल्सो
involved. So here in the international trade, if there is a no proper and secure packing of consignment and there is a danger in its pilferage or breakage in transit, या कोई भी ऐसी कंडीशन रहती है, चलो आपने सपोज कोई कांच की चीज़ें बाहर से मंगवाई है, तो उसमें क्या रहता है, टूट जाने का डर रहता है, डैमेज होने का डर रहता है. सो दिस इज़ हाउ इन सच टाइप ऑफ शिपिंग इट देर इज़ लाइक रेक्टिफाइंग ऑफ इन्वॉल्विंग गुड्स डील ऑफ द एक्सपेंसेस. So this is all about marketing conditions. Now we will see differences in the natural resources and geographical conditions. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कंट्रीज हैविंग अ डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज, हमने आगे देखा है फीचर्स ऑफ नेचुरल एंडोनमेंट में, वही सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है ओवर हियर दैट इंडिया इज रिच इन मीका, मैंगनीज एंड ऑल, while Kuwait and Iraq are having an abound in the oil. So similarly there is a due difference in the climate, rainfall and soil. So there are also differences in the agriculture and industrial production. Therefore the differences account for the difference in the cost of production of the every country. Sixth point, we will see what actually the import and export restrictions. Import and export restrictions are on the basis of purchase in goods in the different parts of the countries. But in the interest of national development and security, the government of different countries do impose some restrictions on the import and export of some goods. So this is how there is an import and export restrictions and various tariffs are there on the trade. Now we will just see seventh, that is difference in mobility of goods. Mobility of goods means what? Which they can move from one place to another, that is means of transport. कौन सा यूज़ करते हो आप, रेलवेज है, रोडवेज है, एयरवेज है या वाटरवेज है, which can be easily decided as according to where the country और सम अदर कंट्री कहाँ पे हमको ट्रेड सामान पहुँचाना है. सो दिस इज़ हाउ इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में क्या रहता है, जनरली एयरवेज या वाटरवेज ही यूज़ होता है, उसमें रोडवे यूज़ नहीं होता है, राइट. सो दिस इज़ हाउ देर इज़ एन डिफरेंस इन द मोबिलिटी ऑफ गुड्स. International organization, here international organization, different countries of the world are divided into different groups. So here the groups have a mutual political economic problems that influences the international trade but not the internal trade. So for example here European Union has made a deep impact on the global trade. Specific problem, here actually international trade is influenced by the specific problems like international liquidity, international monetary cooperation or international money monetary problems. These problems are being fingered out in the internal trade. Now we will see the 10th topic, that is economic nationalism. Here in the modern times the psychological concept of nationalism has made the distinction between international trade and internal trade. Still, स्वदेशी मूवमेंट in India is an example of this concept. अभी तो स्वदेशी मूवमेंट बहुत ही चल रहा है. अभी जैसे आपको पता है कि ये कोरोना का वायरस जो अभी सबको पता चला है कि दिस चाइना ने बहुत किया है, तो अभी आपको पता है एक एप्लीकेशन भी आया है टू रिमूव द चाइनीज़ एक्ट, राइट. सो हियर अभी स्वदेशी मूवमेंट बहुत ही है, दैट इज़ इकोनॉमिक nationalism, right. So here such policies cause harm to the other nations. It matters a little to it. So this is how there is a discrimination policies that are not pursued in respect of trade between the different regions of the same country. Last point, that is different in language, custom and production. There is in different countries, so there is a differences in the language, custom, tradition and political system. So here there is a difference which make the international trade difficult. Thank you.